محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالی اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا. فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. ریاستی وزیر اعلیٰ کا دورہ کامریڈی انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ و ایس پی دفتر کا کیا افتتاح. پولیس کمشنر کارتکیہ کی قیادت میں سخت ترین پولیس بندوبست. ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، ایم پی بی بی پاٹل و دیگر ایم ایل اے و ایم ایل سیز نے کی شرکت. ان لاک کے بعد بازاروں میں بڑی گہما گہمی. پھر سے رات کے شادیوں کا ہوا آغاز، لیکن ماہرین کی جانب سے کورونا تیسری لہر کی پیش گوئی، احتیاط ضروری. تلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاحی حکومت، جس کی ترقی کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کوشاں اور ان کے آبائی مقام سدی پیٹ میں کلیکٹریٹ دفتر و ایس پی دفتر کا افتتاح کرنا ایک عظیم کارنامہ. ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی. بھینسہ بلدیہ چیئرمین محمد جابر احمد کی صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی سے ملاقات و بھینسے میں جاری ترقیاتی کاموں سے کروایا واقف. کیشو پور دیہات میں پولیس کمشنر کارتکیہ کی ہدایت پر ACP وینکٹیشور کے ہاتھوں 16 CCTV کیمرے کا آغاز. بڑا بھیمگل سے تعلق رکھنے والے GTPL روشنی کے کیبل آپریٹر کی سانحہ ارتحال پر تمام کیبل آپریٹر GTPL روشنی ٹی وی انتظامیہ کی جانب سے ملاقات کرتے ہوئے دی گئی مالی امداد. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنڈلا چندر شیکھر راؤ نے سدی پیٹ کا دورہ کر کے MLA کیمپ دفتر، پولیس کمشنریٹ و دیگر ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کا افتتاح عمل میں لایا. ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنڈلا چندر شیکھر راؤ نے سدی پیٹ کا دورہ کر کے MLA کیمپ دفتر و پولیس کمشنریٹ اور دیگر ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کا افتتاح عمل میں لاتے ہوئے عہدیداران و عوامی نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ تحریک سدی پیٹ سے شروع کرنے کا اظہار کیا اور بتایا کہ ضلع سدی پیٹ ان کا پیدائشی مقام ہونے پر سدی پیٹ میں کلیکٹریٹ کمپلیکس کا آغاز عمل میں لانے پر خوشی کا اظہار کر کے ضلع کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ گورننس ریفارم کے تحت ریاست میں 33 ضلعوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور اسی طرح سے گزشتہ 4 لاکھ ٹن اہلیت رکھنے والے گودام کو فی الحال 25 لاکھ ٹن تک اضافہ کرتے ہوئے ریاست کے کسی بھی ریاست میں قیام عمل میں نہ لانے والے ریتو ویدیکا بھون کا قیام عمل میں لانے کا انکشاف کیا. بھینسہ بلدیہ چیئرمین محمد جابر علی کی صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی سے ملاقات و مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال. مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد و بھینسہ بلدیہ چیئرمین محمد جابر احمد نے آج دارالسلام دفتر مجلس اتحاد المسلمین پر صدر مجلس اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے بھینسے میں جاری ترقیاتی کاموں کے مطابق انہیں واقف کرواتے ہوئے یہاں پر درپیش مسائل کے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے نمائندگی کی. اسی طرح صدر مجلس اسد الدین اویسی نے بھینسے میں جاری ترقیاتی کاموں پر مسرت کا اظہار کیا. اقلیتی اقامتی اسکول گرلز 2 دھرم پوری ہلز نظام آباد کو کالج کی حیثیت سے ترقی. کالج میں 2 کورسز MLT اور MPHW کا آغاز.
शहरियान जिले निजामाबाद के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से खुशखबरी दी है कि जिले के अखिलती अकामती स्कूलों को तरक्की दी गई है। इसमें अखिलती अकामती स्कूल गर्ल्स 2 धर्मपुरी हिल्स निजामाबाद भी शामिल है, जिसमें हाई स्कूल जो जूनियर कॉलेज की हैसियत से तरक्की दी गई है। इस कॉलेज में 2 ग्रुप का आगाज किया जा रहा है। MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन, MPHW मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर, इन 2 ग्रुप में दाखिलों का आगाज हो चुका है। दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबात ऑनलाइन दरख्वास्त 24 जून तक दाखिल कर सकते हैं। 40 तलबात को एक शोबे में दाखिला दिया जा रहा है, जिसमें 30 मुस्लिम तलबात 10 गैर मुस्लिम तलबात होंगे। मोहतरमा फेबा क्रिस्टिना प्रिंसिपल अखिलती अकामती जूनियर कॉलेज गर्ल्स 2 धर्मपुरी ने अखिलती तलबात से ख्वाहिश की है कि सुनहरे मौके से इस्तिफादा करते हुए जल्द अज जल्द ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करें और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए दर्ज झेल नंबरात 6300594596 और 7995057948 पर रब्त करें। वाज़ेह हो कि कॉलेज में भी क़याम ताम और तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जाएगी। सारा फाउंडेशन की जानिब से फलाही खिदमात का सिलसिला जारी। इनकी जानिब से शहर की एक मस्जिद को किया गया नमाजियों के लिए सैनिटाइज। सारा फाउंडेशन निजामाबाद जो गुज़िश्ता कई सालों से सदर व बानी तंजीम मोहम्मद साबिर हुसैन की क़यादत में मुसलसल अपनी फलाही कारकर्दगी बिला लिहाज मजहब व मिलत जारी रखे हुए है और कोरोना वबा के इस दौर में इनकी जानिब से मुसलसल हर मजहब की इबादत गाहों को मुफ्त में सैनिटाइज किया जा रहा है। और आज इस तंजीम की जानिब से शहर के इलाके ऑटो नगर में मौजूद मस्जिद अजीजिया को नमाजियों के लिए बिना अल्कोहल वाले जरासीम कश अद्विया से सैनिटाइज किया गया है, जिस पर मस्जिद इंतजामिया ने इनकी खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा फारूक, अफ़ान और जुबैर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सारा फ्री में मुफ्त में किया गया है। हम तमाम मुसलमान मस्जिद अस्सलाम वालेकुम। सारा फाउंडेशन की जानिब से आज मस्जिद अजीज़िया ऑटो नगर को सैनिटाइज़ किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा फाउंडेशन की जानिब से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना वबा की वजह से मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों को फ्री सैनिटाइज़ किया जा रहा है और अब तक हमारे पास निज़ामाबाद के तकरीबन तमाम ही मस्जिदों को, मंदिरों को और चर्चों को सैनिटाइज़ किया गया है और यहाँ पर मुसल्लियान के लिए इबादत गाहों को पाक किया जा रहा है ताकि जो यहाँ पर इबादत के लिए आ रहे हैं उनके लिए राहें हमवार हो। और आप तमाम से गुजारिश है कि जैसे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। भीमगल मंडल मौजे बड़ा भीमगल के केबल ऑपरेटर रचला प्रभुदास के अचानक इंतकाल पर GTPL मालिकीन व केबल ऑपरेटर्स ने महलूकीन खानदान से मुलाकात करके रकमी इमदाद पेश की। भीमगल मंडल के मौजे बड़ा भीमगल से ताल्लुक़ रखने वाले केबल TV ऑपरेटर रचिला प्रभुदास के खिदमात अंजाम देने के दौरान मौत वाक़ होने पर GTPL मालिकीन की जानिब से इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके गहरे अफसोस का इजहार करने इनके अरकान खानदान को 75,000 के साथ 1,50,000 रुपए की रकमी इमदाद पेश करके इजहार ताज़ियत पेश की। इस प्रोग्राम में GTPL मालिकीन के अलावा दीगर केबल ऑपरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। మా తోటి మిత్రుడు కేబుల్ ఆపరేటర్ల తరపున చాలా రోజులు సమస్యల కోసం పోరాడిండు. రాచల ప్రభుదాస్ బడా భీమ్గల్ కేబుల్ ఆపరేటర్ అనివార్య కారణాల వలన మాకు దూరంగా జరిగిన విద్యుత్ షాక్తో గత నెలలో మే 8వ తారీఖున మరమ్మతులు చేస్తున్నా అంటే కేబుల్ రిపేర్ చేస్తుండగా విద్యుత్ షాక్తోని చనిపోవడం జరిగింది. భీమ్గల్ మండలం బడా భీమ్గల్ డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ 20 సంవత్సరాలుగా కస్టమర్లకు సేవలు అందించిండు. ఈరోజు మా తోటి మిత్రుడు మేము కోల్పోయినందుకు బాధపడుతూ మేము కేబుల్ ఆపరేటర్ల మందిరము నియోజకవర్గ ఆపరేటర్ల మందిరం తలా ఇంత చేయి వేసి ఒక ఆపరేటర్ కుటుంబాన్ని కాపాడతామన్న మనోధైర్యంతో ఈరోజు వాళ్ళ కుటుంబానికి సేవ చేయడం జరిగింది. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని మా కేబుల్ ఆపరేటర్ తరపున అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. तमाम अजला में कोरोना केसों में कमी।
रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,23,000 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,362 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद रियासत में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,12,196 तक पहुंच गई है। अमवात की तादाद 3,556 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से रियासत भर में 10 अमवात ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रियासत के तकरीबन तमाम अजला में कोरोना के मामूली केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक अजला में गुज़िश्ता रोज कोरोना के जो मुस्बित केस दर्ज हुए हैं, इसकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद में 5, कोतागोड़ा में 81, ग्रेटर हैदराबाद में 145, जगतियाल में 25, जनगांव में 16, भोपालपल्ली में 25, गदवाल में 9, कामरेड्डी में 3, करीमनगर में 84, खम्मम में 122, आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 26, महबूबाबाद में 66, मंचियाल में 42, मेदक में 8, मेरचल में 66, मलक में 24, नागर कर्नूल 16, नलगोंडा 83, नारायणपेट 7, निर्मल में 5, निजामाबाद में 6, पेद्दापल्ली में 58, सिलसिले में 26, रंगारेड्डी में 97, संगारेड्डी में 24, सिद्दीपेट में 41, सूर्यापेट में 89, विकाराबाद में 26, वनापर्ती में 24, वरंगल रूरल में 19, वरंगल अर्बन में 52 और भुवनेश्वर जिले में 27। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक एसीपी वेंकटेश्वर ने 16 सीसी कैमरे का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक एसीपी वेंकटेश्वर ने निजामाबाद रूरल मंडल के केशवपुर देहात में दही तरक्की कमेटी से खरीदे गए 16 सीसी कैमरे का इफ्तिताह अमल में लाते हुए बताया कि सारिकों की जानिब से चोरी की वारदात व जराइम को रोकने में सीसी कैमरे अहम तरीन रोल अदा करने के अलावा चोरी में मुलविस खातियों की शनाख्त करने के साथ साथ अगवा करने वाले मुजरिमीन को आसानी के साथ हिरासत में लिया जा सकता है। इसी तरह एक सीसी कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर होने का इजहार करते हुए कहा कि केशवपुर देहात से वाबस्ता अवाम की जानिब से सीसी कैमरे का क़याम अमल में लाने पर काफी खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद रूरल सीआई आर रवि, रूरल एसआई जी लिमाद्री, 6 टाउन एसआई अंजनेलू, केशवपुर सरपंच वनीता सुभाष, नायब सरपंच नरसारेड्डी, दही तरक्की कमेटी मेंबरान वेंकट रेड्डी, पुलिस कल्चरल टीम और मौजे से वाबस्ता अवाम व दीगर ने शिरकत की। సీసీ కెమెరాలు కాదండి, మారుతున్న పరిస్థితులను బట్టి ఒకప్పుడు దొంగలు దొరకాలంటే చాలా కష్టపడేది మేమైతే. ఈ ఊళ్ళో దొంగతనం ఏంటంటే 2 ఏళ్ళకు 3 ఏళ్ళకు వాడు ఎక్కువ దొరికిన తర్వాత తీసుకొచ్చి వాడిని కొట్టి చెప్తే వాడు డోర్ ఇప్పితే కదా దొరికేది. ఇప్పుడు ఈ సీసీ కెమెరాలు వచ్చిన తర్వాత దొంగతనాలు అనేటివి చాలా తగ్గిపోయింది. దొంగ అంటోడు ఎవడు తెలిస్తే పట్టుకోవడం మాకు సమస్య కాదు, పోలీసులకు సమస్య ఉండదు. దొంగ అంటోడు ఫస్ట్ తెలియాలి. ఎక్కడో కిన్వట్ దొంగ ఎవడో మహారాష్ట్ర దొంగలు, అక్కడ దొంగలు, ఇక్కడ దొంగలు వచ్చి ఇక్కడ చేసిపోయినా కూడా చాలా టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి. ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ అని, సిడిఆర్స్ అని, తర్వాత బొమ్మల్ని కూడా మేము ఎక్కువ చేసి చూడడం, అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. మా దగ్గర ఒక్క సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఉంటే ఒక 10 రకాల మిషనరీస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. దాని ద్వారా వాళ్ళ ముక్కు ఎట్లుంటుంది, వాళ్ళ ఇది ఎట్లుంటుంది, చేసి మబ్బు సినిమా పడ్డా కూడా, బొమ్మ పడ్డా కూడా దాన్ని మనం స్టేజ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఇది ఉంటుంది. కాబట్టి దొంగతనాలు తగ్గిపోతాయి. कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकिल में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर एमपीपी गौतमी सुमन व टीआरएस पार्टी मंडल सदर देविंदर ने टीआरएस पार्टी दफ्तर में मंडल के दीगर मौजूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 18 मुस्तकिल में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर एएमसी चेयरमैन मालावत प्रकाश, रायतू मंडल कोऑर्डिनेटर बदम राजेश्वर, एमपीटीसी सुधाकर और दीगर मौजूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच व एमपीटीसी अवामी नुमाइंदे और कायदीन कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा के दौरान और मुश्किल हालात में भी रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने स्कीमात को जारी रखते हुए गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए कोशा होने का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीब व मुस्तवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहते हुए अद्वियात व दीगर अखराजात की अदायगी न करने वाले अफराद को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सीएम रिलीफ फंड के तहत रकम मंजूर की जा रही है ताकि इनके इलाज व मुआलजे के काम आ सके। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगान ने सीएम केसीआर व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का तहे दिल से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे व मंडल कायदीन मौजूद थे। भीमगल मंडल के मुकाम पर एमपीडीओ राजेश्वर ने मंडल परिषद दफ्तर में आशा वर्कर्स और महकमे सेहत के अहदेदारों को मौसमी अमराज से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किया।
भीमगल मंडल के मुकाम पर एमपीडीओ राजेश्वर ने मंडल परिषद दफ्तर में आशा वर्कर्स व महकमे सेहत के अहदेदारान को मौसमी अमराज से मुतालिक शऊर बेदारी का इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक साफ सफाई पर मुबनी स्पेशल ड्राइव मुनक्किद करने के लिए महकमे सेहत के अहदेदारान को ताकीद की गई। इसी तरह से मुआवजे में ठहरे हुए पानी की निकासी अमल में लाने के अलावा पानी के लीकेज की शनाख्त करके फौरी तौर पर मरम्मत करवाने के ताल्लुक से पंचायत सेक्रेटरी को हिदायत देते हुए बताया कि मौसमी बरसात में मच्छरों की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी मौलिक अमराज की बरपा होने पर इनको फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अमराज पर काबू पाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ गंगा मोहन, महकमे सेहत अहदेदार डॉक्टर अजय कुमार, ANM, पंचायत सेक्रेटरी व आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का-ए-सुंबली मोरताल मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी सदर की जेर निगरानी में पार्टी दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तेफादा कुनगान में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का-ए-सुंबली मोरताल मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी सदर इलैया की जेर निगरानी में पार्टी दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों से 45 मुस्तहिकीन में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने के बावजूद भी रियासती हुकूमत गरीब अवाम को इलाज व मुआलजे के लिए दरकार रकम की मंजूरी अमल में लाना काफी खुशाइन बात होने का इजहार करते हुए बताया कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम की मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आने के साथ इनको अखराजात की अदायगी करने में राहत होने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनगान में CM KCR व रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया गया। इस प्रोग्राम में MPP श्रीनिवास, मंडल सदर इलैया, वाइस MPP श्रीनिवास, सरपंच दरानी राजेश्वर, MPTC राजपाल, DCCB डायरेक्टर भूमना, मंडल कायदीन अशोक, महपाल, आरिफ, देवादास व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का-ए-सुंबली मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़े रायतु संगम इमारत के पास किसानों के मसीहा बदम नरसिम्हा रेड्डी की बरसी तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का-ए-सुंबली मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़े जिले रायतु संगम इमारत के पास किसानों के मसीहा बदम नरसिम्हा रेड्डी की बरसी तकरीब को इनकी अहलिया बदम सुनीता श्रीता रेड्डी व जिले रायतु जरई संगम कायदीन गंगाराम, रमेश रेड्डी, तिम्मापुर अशोक, प्रभुदास व दीगर ने किसानों के मसीहा बदम नरसिम्हा रेड्डी के मुजस्सिमे पर दीप जलाते हुए भरपूर खिराज खिदमत पेश किया। इस मौके पर दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना आंध्रा के किसानों के मसाइल से वाकिफियत हासिल करके जिले जरई संगम को कायम करके इस वक्त के अनजानी CM NT रामाराव के इल्म में लाते हुए मसाइल को हल करने में अहम तरीन खिदमत अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में किसानों की कायदीन व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तेफादा कुनगान में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़े टीआरएस पार्टी दफ्तर के पास RTA एग्जीक्यूटिव मेंबर रामलू मौजे टीआरएस सदर प्रताप के हाथों इस्तेफादा कुनगान में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर पार्टी एग्जीक्यूटिव मेंबर ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुंसलिक दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम की नासाज तबीयत के बाइस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले अफराद को CM रिलीफ फंड एक बेहतरीन नेमत होने का इंकशाफ किया। इस मौके पर मुस्तहिकीन ने रियासती वज़ीर आला और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में जिले RTA मेंबर रामलू, नायब सरपंच सत्यम, MPTC M महेश व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल मौजे वेनल में अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तेफादा कुनगान में CM रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम। नंदीपेट मंडल मौजे वेनल में MPP संतोष रेड्डी व सरपंच कृष्णा रेड्डी ने मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनगान को CM रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ खुदावनपुर सोसाइटी चेयरमैन कार्तिक रेड्डी, साबिक़ा सरपंच सागर चिन्नैया व दीगर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बीमारी में मरीजों की मदद करना और इनकी मिजाज पुरसी करना इन
इंसानियत की अजीम मिसाल है और बताया कि वज़ीर आला सेहत के शोबे में सरकारी हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की मियार पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तारीख में पहली मरतबा जिले के कई एक अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम अमल में लाते हुए गरीबों को मुकम्मल और बेहतरीन आला मियार का इलाज फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगान ने CM KCR व आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रोटरी क्लब ऑफ आर्मूर की जानिब से यतीम लड़की की शादी में रकमी इमदाद। रोटरी क्लब ऑफ आर्मूर की जानिब से यतीम लड़की की शादी में रकमी मदद सदर रोटरी क्लब ऑफ आर्मूर प्रवीण पुर ने बताया कि आर्मूर मंडल में एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली यतीम लड़की शादी में रोटरी क्लब मेंबर सुधीर की मदद से 5000 रुपये रकमी इमदाद की गई ताकि इस गरीब खानदान को सहूलत हो और बताया कि इस गरीब खानदान के लिए मजीद इमदाद करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर सदर रोटरी क्लब आर्मूर प्रवीण पवर के अलावा रोटरी सेक्रेटरी शंकर के अलावा दीगर सुधीर गंगाधर वेणु और दीगर मौजूद थे। 6 ता 8 हफ्तों में तीसरी लहर एम्स सरबराह रणदीप गुलेरिया की वार्निंग। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गिलेरिया ने हफ्ते को वार्निंग दी कि अगर कोविड उसूलों पर अमल नहीं किया गया और हुजूमों को जमा होने से रोका नहीं गया तो अगले 6 से 8 हफ्तों में मुल्क में वबाई इन्फेक्शन की नई लहर आ सकती है। इन्होंने कहा कि जब तक काबिल लिहाज आबादी को टीका नहीं दिया जाता सरगर्मी से कोविड उसूलों पर अमल करना चाहिए। इन्होंने केसों में इजाफे की सूरत हाल में सख्त निगरानी और मखसूस इलाकों में लॉकडाउन की जरूरत पर जोर दिया। गिलेरिया ने कहा कि अब तक इस बात पर यकीन करने के कोई शायद नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की अगली लहर में बच्चे ज्यादा मुतासिर होंगे। क़ब्ल अज़ीं हिंदुस्तान के वबाई अमराज के माहिरीन ने इशारा दिया था कि कोविड-19 की तीसरी लहर यकीनी है और ये सितंबर अक्टूबर में शुरू हो सकती। हिंदुस्तान अप्रैल और मई कोविड-19 वबा की दूसरी लहर से बुरी तरह मुतासिर रहा, जिसके दौरान कई जाने गई। इस खतरनाक लहर के दरमियान कई दवाखानों में ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत, ताहम गुज़िश्ता चंद दिनों में केसों में कमी का रुझान देखा गया और मुस्बित आने की शरह भी कम हुई। ज़रई व गैर ज़रई अराज़ियात की कीमतों में 30 ता 50% इजाफे का इम्कान, सरकारी कीमत और मार्केट कदर का जायजा लेने कमेटियां तश्कील देने का इम्कान, तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर गौर। रियासत में ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियात की कीमतों में 30 ता 50% इजाफे के इम्कानात है। हुकूमत की जानिब से सर्वे नंबरात की बुनियाद पर अराज़ियात की मार्केट कदर के हिसाब से नई कीमतें तयन करने का जायजा लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के पास तजावीज़ पेश हो चुकी है, किसी भी वक्त फैसला मुमकिन है। हाईवेज, जिले परिषद, पंचायत रोड्स के पास मौजूदा अराज़ियात की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है, जबकि जंगलाती इलाकों के करीब मौजूद अराज़ियात की कीमतें ज़्यादा बढ़ने की तौक़े नहीं है। वार्ड और ब्लैक सतह पर मुकामात अराज़ियात की कीमतों का तयन किया जाएगा। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस, टाउन्स और अजला में अराज़ियात की मार्केट कदर और हुकूमत के तयन करदा कीमत में ज़बरदस्त फ़र्क पाया जाता है, जिस पर नज़रसानी करना ज़रूरी हो गया है। मिसाल के तौर पर निर्मल में हुकूमत की जानिब से मकानात के लिए 1000 ता 2000 रुपये फी गज अराजी की कीमत का तयन किया गया है, मगर मार्केट कदर 10,000 रुपये फी गज हो गई। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर एन करण कुमार रेड्डी ने सर्वे नंबरात की बुनियाद पर अराज़ियात की कीमतों का 2013 में सरकारी कीमतों का तयन किया था। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हुकूमत मार्केट कदर के लिहाज से अराज़ियात की कीमतों का तयन करने का जायजा ले रही है और इसके लिए कमेटी तश्कील देने का इरादा रखती है। अजला में ये कमेटियां एडिशनल कलेक्टर्स की क़यादत में काम करेगी, जिसमें अजला के रजिस्ट्रार्स, सब रजिस्ट्रार्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स शामिल रहेंगे, जबकि हैदराबाद में HMDA के कमिश्नर और दूसरे ओहदेदार शामिल रहेंगे। ये कमेटियां मुख्तलिफ इलाकों के अराज़ियात, ज़रई अराज़ियात की सरकारी कीमतों और मौजूदा मार्केट कदर का जायजा लेते हुए सर्वे नंबरात, शहरों, टाउन, हाईवे के करीब और जंगलात के करीब रहने वाली अराज़ियात की कीमतों के तयन के ताल्लुक से हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। कोरोना वायरस की सरकारी टीका अंदाजी मराकज में क़वायद व ज़ाबित नज़रअंदाज, 3 कमरों की सहूलत, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल की जांच का कोई इंतजाम नहीं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के सरकारी टीका अंदाजी मराकज़ पर कोरोना वायरस के क़वायद व ज़ाबित पर अमल न करने की शिकायत मामूल की बात बन चुकी है, लेकिन अब इन टीका अंदाजी मराकज़ पर टीका अंदाजी के उसूलों पर भी अमलावरी नहीं की जा रही है, जबकि आलमी इदारा सेहत के अलावा
ICMR की जानिब से टीका अंदाजी मराकज पर टीका अंदाजी के उसूलों को लाजमी तौर पर काबिल अमल बनाने की ताकीद की गई है। ताहम महकमे सेहत तेलंगाना की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से ऐसा महसूस हो रहा है कि महकमे सेहत के टीका अंदाजी में मसरूफ अमले को टीका अंदाजी के उसूलों को कोई परवाह नहीं है और न ही इन्हें टीका अंदाजी के दौरान की जाने वाली एहतियात का कोई एहसास है। टीका अंदाजी मराकज को 3 कमरों पर मुश्तमिल रखने और टीके के हुसूल के लिए पहुंचने वालों का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल की जांच और टीका अंदाजी के बाद 20 मिनट तक 30 मिनट टीका हासिल करने वालों पर नजर रखने के उसूल मुरतब किए गए हैं और इन उसूलों पर अमलावरी लाजमी है। लेकिन इसके बावजूद सरकारी टीका अंदाजी मराकज पर ऐसी कोई एहतियात नहीं की जा रही है और न ही टीका देने के बाद टीका हासिल करने वालों की सेहत पर होने वाले असरात की जांच के लिए इन्हें मरकज में रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं, बल्कि टीके के हुसूल के लिए पहुंचने पर ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की सतह का भी जायजा लेने के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। सरकारी टीका अंदाजी मराकज के बरक्स तमाम खानगी दवाखानों में टीके के हुसूल के लिए पहुंचने वालों की पहले जांच की जा रही है और इसके बाद इन्हें टीका दिया जा रहा है। टीका लेने के बाद इनकी 30 मिनट तक निगरानी के बाद ही इन्हें मरकज से रवाना होने की इजाजत दी जा रही है। सरकारी टीका अंदाजी मराकज पर की जाने वाली इस लापरवाही का महकमे सेहत को फौरी सख्त नोट लेने के लिए जरूरत है और टीके के उसूल के लिए पहुंचने वालों को मुकम्मल एहतियाती तदाबीर और उसूलों के मुताबिक टीका अंदाजी और इनकी जांच को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाने चाहिए। अगर महकमे सेहत की जानिब से फौरी तौर पर सरकारी टीका अंदाजी मराकज पर इन उसूलों को काबिल अमल बनाने के इक़दाम नहीं किए जाते तो ऐसी सूरत में सरकारी टीका अंदाजी मराकज पर से अवामी एतमाद उठ जाएगा, क्योंकि टीका अंदाजी के उसूलों और एहतियात की आलमी इदारा सेहत ICMR और खुद महकमे सेहत की जानिब से ड्राई रन के दौरान जिस तरह से तशरीह की गई थी, इसके सबब शहरियों को इस बात का एहसास है कि सरकारी अमला टीका अंदाजी के दौरान उसूलों की पाबंदी करेगा। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो महकमे सेहत के अमले पर से अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। निजामाबाद शहर के मशहूर व खास सीनियर वकील साबिका गवर्नमेंट प्लेडर करण कुमार गौड के फर्जन की शादी तकरीब में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को दुआओं से नवाजा। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मशहूर वकील व साबिका गवर्नमेंट प्लेडर लता किरण कुमार गौड फर्जन ऋषि केतन की शादी हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली के विजय कुमारी व महेश कुमार की दुख्तर मोनिका से बरोज इतवार को पटन तालाब के 3 ORR के अथर्वा रिसोर्ट में मुनक़िद हुई। इस शादी तकरीब में निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करके नए जोड़े को दुआओं से नवाजा और शादी तकरीब में दीगर वकला NL शास्त्री, गणेश, साई रेड्डी, रोटरी क्लब सेक्रेटरी बाबूराव, नरसिंह राव व दीगर ने शिरकत की। कम कीमत पर जरूरी अशिया रवाना करके अवामी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं कार्गो सर्विस। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ बस स्टैंड में RTC कार्गो खिदमात का आगाज अमल में लाते हुए मौलिक वबा कोरोना के दौरान अवाम को कई ज़रूरी अशिया को बहुत ही कम कीमत में रवाना करने, बेहतरीन इंसानी खिदमात अंजाम देने के लिए इनका कोई सानी नहीं है। इस मौके पर RTC DM गणपति राज ने कहा कि निज़ामाबाद में कार्गो के खिदमात के लिए 54 काउंटर्स काम करेंगे। काम करने के अलावा 100% कंप्यूटराइज करते हुए RTC अहदेदार खिदमात से मुतालिक मुआयना करके सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत ही कम कीमत पर अवाम की जरूरी अशिया को रवाना करने के बाइस अवाम की मोहब्बत शामिल होने का इंकशाफ किया। కార్గో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి 1 ఇయర్ అయిందండి. త్రూఅవుట్ కార్పొరేషన్ లోపల ఈరోజు ఈ కార్గో యొక్క సర్వీసెస్ని గణనీయంగా చేసినందుకు ఈ 1 ఇయర్ అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా వాళ్ళ కౌంటర్లలో కార్గో కౌంటర్లలో సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళంతా కూడా. ఈ యొక్క 1 ఇయర్ లోపల మాకు ఈ కరోనా పీరియడ్ కాబట్టి ఈ కరోనా లోపల ఈ యొక్క కార్గో సర్వీసు ఆదాయానికి ఎంతో దోహదపడింది. ఈ యొక్క సర్వీసెస్ వల్ల మనకు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది 100% కూడా ఉండడం జరిగింది. एम्प्लॉयमेंट कार्ड रिन्यूअल करने का मौका।
जिले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर निजामुद्दीन श्रीनिवास ने बताया कि हुकूमत की जानिब से एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाने की सहूलत दी जा रही है। कार्ड रिन्यूअल करने की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका है। दफ्तर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से रुजू होकर फौरी कार्ड रिन्यूअल करा ले। नया कार्ड बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद जिनकी उम्र 45 है और जो तालीम याफ्ता होते हुए वो बेरोजगार है, वो फौरी अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड बना ले। तफसीलात के लिए employment.telangana.government.in पर मुशाहिदा करें। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्रीनिवास ने बताया कि जिले में अभी तक 40,000 एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाए गए हैं। रियासत की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स के 2152 जायदादें मखलूआ, सिर्फ 28% अमला मौजूद। 4 साल कबल 1061 जायदादों पर तकर्रात की मंजूरी, जिस पर अमल नहीं हुआ। रियासत के यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रात का अमल तातुल का शिकार है। रियासत के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जुमला 2979 प्रोफेसर की जायदादें हैं, जिसमें 2152 जायदादें मखलूआ है। 4 साल कबल 1061 जायदादों पर तकर्रात के लिए मंजूरी दी गई थी, मगर आज तक तकर्रात का अमल पूरा नहीं हुआ। आला तालीम फराहम करने वाली यूनिवर्सिटीज़ की ये सूरत हाल है। इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत आला तालीम को कितना नजरअंदाज कर रही है। बरसों से मखलूआ इन जायदादों में 1061 जायदादों पर हरी झंडी दिखाई थी, जिस पर आज तक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। एक तरफ तकर्रात नहीं हो रहे हैं तो दूसरी तरफ तरक्की नहीं हो रही है। फैकल्टी के बगैर यूनिवर्सिटीज का वजूद बराए नाम हो गया है। अगर यही हाल रहा तो आला तालीमी निजाम खतरे में पड़ सकता है। रियासत की यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के जायदादें मखलूआ होती है। इन पर तकर्रात करने के लिए हुकूमत ने 2017 में 1061 जायदादें पर तकर्रात करने की मंजूरी दी थी। इस वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज में 1700 मखलूआ जायदादें थी, जिनमें प्रोफेसर की 99 एसोसिएट प्रोफेसर, 692 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 270 जायदादें थी। इन जायदादों पर तकर्रात के लिए गफलत और लापरवाही से काम लिया गया। इस दौरान वाइस चांसलर्स की मियाद भी मुकम्मल हो गई। तब से थोड़े दिन पहले तक हुकूमत ने IAS ऑफिसर्स को इंचार्ज वाइस चांसलर्स की हैसियत से नामजद करते हुए काम चलाया था। इन 4 साल के दौरान मजीद 400 तदरीसी वजीफे पर सुबुकदोश हुए हैं, जिससे मखलूआ जायदादों की तादाद बढ़कर 2152 तक पहुंच गई है। रियासत के तमाम यूनिवर्सिटीज में 2979 तदरीसी अमला होना चाहिए, ताहम सिर्फ 827 तदरीसी अमला मौजूद है। सिर्फ 28% तदरीसी अमले से काम लिया जा रहा है। 72% तदरीसी अमले की जायदादें मखलूआ है। मौजूदा हालात में 1061 जायदादों पर तकर्रात करने के बावजूद मसला हल होने का इम्कान नहीं है। आर्जी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर चंद लेक्चरर्स की खिदमत से इस्तिफादा किया जा रहा है, लेकिन जरूरत के मुताबिक इनकी तादाद नहीं है। बिलखुसूस लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता साल कोरोना बहरान के बाइस ऑनलाइन तालीम हुई है। तदरीसी अमले की मुनासिब अंदाज में अदम मौजूदगी से मुनज़्ज़म अंदाज में क्लासेस नहीं हो पाई। अब नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमले के तकर्रात न होने की वजह से सबसे ज्यादा PhD तलबा के साथ नाइंसाफी हो रही है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर आला का दौरा कामरेड्डी इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट व SP दफ्तर का किया इफ्तिताह। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया की क़यादत में सख्त तरीन पुलिस बंदोबस्त। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MP BB पाटिल व दीगर MLA व MLCs ने की शिरकत। अनलॉक के बाद बाजारों में बड़ी गहमा गहमी, फिर से रात के शादियों का हुआ आगाज, लेकिन माहिरीन की जानिब से कोरोना तीसरी लहर की पेशगोई, एहतियात जरूरी। तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाही हुकूमत, जिसकी तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला KCR कोशाह और उनके आबाई मुकाम सिद्दीपेट में कलेक्ट्रेट दफ्तर व SP दफ्तर का इफ्तिताह करना एक अजीम कारनामा। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। भैंसा बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद की सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात व भैंसे में जारी तरक्याती कामों से करवाया वाकिफ। केशवपुर देहात में पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया की हिदायत पर ACP वेंकटेश वर्ग के हाथों 16 CCTV कैमरे का आगाज।
बड़ा भीमगल से ताल्लुक रखने वाले GTPL रोशनी के केबल ऑपरेटर की साना हड़ताल पर तमाम केबल ऑपरेटर GTPL रोशनी टीवी इंतजामिया की जानिब से मुलाकात करते हुए दी गई माली इमदाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।